शुरू। हाँ, ओके। Wait a moment. Ma'am, you may start. Namaskar, Suprabhatam, and welcome to today's morning session, all the participants. And let me tell you, today we are having a guest teacher with us, Miss Priyanka Patra. We're conducting our today's yoga session. So before we start, let me just tell few things. There are many things to tell, but Priyanka madam comes from a psychology background. Um, she's done her training from the Yoga Institute Santa Cruz, and she's also qualified from the Ayush Ministry, and she's been practicing yoga for many years and is associated with the Yoga Institute Santa Cruz, and she regulates classes for yoga professionals, teachers, students, kids, and in her personal capacity, she is also conducting many of the online events. She's been organizing various events for NGOs also. And so we have today with us Priyanka Patra madam. I request Priyanka Patra madam, please go ahead with our session. Over to you, Priyanka madam. Thank you so much. Namaste everyone, and any another minute, let's begin. So हम शुरू करेंगे. सबसे पहले हमारा क्लास something called a concept called as condition से शुरू करेंगे. तो कंडीशनिंग कुछ नहीं, लेकिन आपको एक कंफर्टेबल मुद्रा में बैठना है. सुखासन में बैठ सकते हैं आप वज्रासन में बैठ सकते हैं. You have to keep straight, that is the requisite. ये बहुत जरूरी है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए और बॉडी कंफर्टेबल होना चाहिए. बॉडी में कहीं भी टाइटनेस नहीं होगा, बॉडी एकदम रिलैक्स, लेकिन स्पाइन स्ट्रेट रहेगा. और आपको एक पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए देखते रहना है. और फिर जेंटली अपनी आंखें बंद कर लें. और अब अपनी सांसों पर ध्यान दें. It is possible that your mind will get distracted to something else. Gently bring it back to your breath. Slowly join your hands in Namaste at the center of your chest. हाथ जोड़ लेंगे नमस्ते मुद्रा में. And chant Sahana Vavatu. Everyone can chant along with me. The one who knows. Sahana Vavatu. Sahana Bhunatu. Sahaviryam
करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 Slowly bring your hands down, open your eyes. Okay. So why do we do conditioning? हम conditioning ये क्यों करते हैं before beginning the class? और क्योंकि हमारा mind हमेशा past और present में fluctuate करते रहता है, आगे पीछे होते रहता है, तो उसे अभी present moment में रोकने के लिए conditioning किया जाता है. Okay. So now let's begin with our warm up. So you all can see me clearly. Interlock your fingers. Again, remember, keep your spine straight. Inhaling, put your hand in front. Exhaling, come back. Turn your palm outward. Inhale. Exhaling back. Inhale, stretch. Exhaling back. Inhale करते हुए साइड में स्ट्रेच करें हाथ को. Exhaling center. Inhale, stretch. Exhaling center. Inhaling, stretch up. Exhale, turn your palm. Inhale, stretch. Exhaling down. Once again, take your hand up. Inhale, bend. Exhaling, center. Inhale, bend. Exhaling, center. Take your one hand down and stay here with normal breathing. Neck straight. 5, 4, 3, 2, 1. And change. Other side. And stay. 5, 4, 3, 2, 1. Now place your hand behind your neck. Again, neck straight. Push your elbows behind, trying to expand the lungs. 5, 4, 3, 2, 1. And release. Relax. Place your hand on your lap, palm facing downward. Inhale, lift करेंगे. Exhale from your mouth and shoulders down. तो आपको inhale नाक से करना है, लेकिन आप exhale मुंह से करेंगे और as if आप हा बोल रहे हो वैसे आपको exhale करना है. So inhale and exhale. Inhale and exhale. Fingers on your shoulder. We will go for rotation, but we will go for cross rotation. So this not only gives exercise to your shoulder joints, but at the same time, your spine is getting activated. So ये instantly आपके thoracic को activate कर देता है, warm up कर देता है. And back to front. And relax. Starting with the neck exercise. So drop your head to your right shoulder. Breathing normal hai. Do not stop your breath or interrupt it. And drop your head to your left shoulder.
back, look to your right, center, and to your left, center, look up, center, look down, center. Start with neck rotation. हम 3 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे नेक रोटेशन और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज. Don't do it mechanically. Pay attention to the stretch. You are getting around the muscles. And relax. Next one, you go for side stretch. You have place your hand. आपको अपना हाथ रखना है on the floor, palm on the floor, in line with your hip. आपके hip के line में आपको हाथ रखना है थोड़ा सा दूर और stretch करना है. Stay here. Normal breathing. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Same thing on the other side. And stay. 5, 4, 3, 2, 1. और एक बार repeat करेंगे. 5, 4, 3, 2, 1. Come back and change. Stay. 5, 4, 3, 1. And come back. Go for a twist. आपको आपका लेफ्ट हैंड राइट नी पर रखकर आपको आपके स्पाइन को ट्विस्ट करने की कोशिश करनी है और पीछे देखना है. और यहाँ पे भी रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ. 5, 4, 3, 2, 1. Come back and change. Other side. And 5, 4, 3, 2, 1. Come back. And now we'll place your hand behind on the floor. पीछे हाथ रखेंगे जमीन पर. Fingers pointing outward. बाहर की ओर fingers रहेंगे. ठीक है. और अब एक हाथ को लिफ्ट कर लें ऊपर और आर्च बैक करना है. And you will look up. ऊपर देखना है. Normal breathing. 5, 4, 3, 2, 1. Come back and change. Stay. 5, 4, 3, 2, 1. And come back. Relax. Just loosely go down, bending forward. And slowly come back up. All right. We will just take our legs in front. Quickly work with the ankle joint also. So point your toes out and in. Point your toes out, in, out, and in, out, in. Now alternate. One in. And relax. Now start rotate and change and relax. So without the challenges, you will not touch the ground with your hand. Without touching the ground, you have to stand up. Okay. Yeah. So let's begin with first asana, that is Talasana.
So you have to take 1 foot. So how do you measure it? You measure it in this way. Yeah, a comfortable distance, hands by your side, shoulders rolled back, eyes focused at a point in front, and you can just follow the instruction. Inhaling, you will start raising both your arms from front, going upward, and at the same time lift your heels off the ground and stay here. Normal breathing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhaling with backward rotation of the hand. Slowly come down. We will repeat one more time. Get ready. Inhaling. 1, 2, 3. Breathing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhaling down. 3. Next one. Another variation where you have to turn your palms outward. बाहर की ओर आपके हथेलियों को टर्न कर लें और inhaling हाथ करना है. And you stay here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhaling down. 2, 3. और एक बार करेंगे. Same thing. Joining the hands in Namaste. Let's do it. Inhale. 1, 2, 3. Normal breathing. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhaling down. 2, 3. All right. So this was Talasana. This gives a good massage to your side muscles. At the same time, it helps to replace the organs because usually हम हैं तो जब भी हम ये upward stretch करते हैं तो हमारे सारे organs they come back to their normal positions, yeah, and they can breathe. Now we take a little widens, that is around 2.5 to 3 feet distance between the legs. So you can measure it if you want. 1, 2, and 3. That is how you can measure. Okay. And we go for Trikonasana now. So to keep this wide distance and hands at T position, palm facing will be downward. Okay. And now you have to turn foot out. Right foot को बाहर की ओर point करेंगे. ठीक है? And look towards your, turn your palm towards the screen actually. And now look towards your right palm. Inhale here. Exhaling, you will go sideways, trying to touch your ankle. But make sure you are going sideways, okay? Do not bend forward. Once you have touched your ankle, you look up. Continue to breathe normal. Stay here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Look down towards your right palm. Inhale, you come up. Take your right foot in. Turn your left foot out and also your gaze to the left palm. Inhale. Exhaling, you go down. Touch your ankle and then you look up. And you stay here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Look down towards your left palm. Inhale, come up. Take your left foot in. Turn your palms downward and relax. हम और एक बार repeat करेंगे ये. Trikonasana.
रिमेम्बर क्या में ये साइड बेंड वाला आसन है, तो आप करते वक्त मेक श्योर क्या जस्ट बिकॉज यू वांट टू टच योर एंकल आप आगे की ओर ना झुकें। आपको अगर ये कर रहे हैं तो ये गलत है, एक लाइन में होनी चाहिए आपके पैरों के साथ। ओके, सो मेक श्योर you do this self correction. All right, so let's do it one more time. Hands in T position. Turn your right foot out. Look towards your right palm. Inhale here. And exhaling, start going down sideways. Touch your ankle and then you look up. And stay here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Look down. Inhale up. Change. Take your other foot out. Look towards your left palm. Exhaling, go down. Touch your ankle, then you look up and you stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Look down. Inhale, come up. Look in front, turn your palm downward and relax. All right, cool. Next we go for is Adho Mukh Shvanasana, that is downward dog and upward dog asanas, but we will do it first in an active way and then we will way. तो एक्टिव क्या है और स्टैटिक क्या है तो वो मैं आपको बताऊंगी। So first is this is downward dog, okay, अधोमुख श्वानासना, और यहाँ से हम ऊर्ध्वमुख के लिए स्विच करेंगे। अगेन अधोमुख एंड ऊर्ध्वमुख। So सब एक साथ करेंगे। We can start doing this at least for 10 rounds. Everyone in downward dog first, where you exhale. Inhale, urdhvamukh. Exhale, adhomukh. Inhale, urdhvamukh. Exhale, adhomukh. Inhale, urdhvamukh. Exhale, adhomukh. Inhale, urdhvamukh. Exhale, inhale. If you feel tired, you can always relax. Exhale, inhale, exhale, inhale. Last 3 rounds. Exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, and inhale. Relax. Vajrasana. And keep your spine straight. And whenever you relax, I always instruct my students, keep your eyes closed, observe your breathing. Do not look anywhere else. Just watch your breath. You can slowly open your eyes, and till then, till the time your breath relaxes, you can just watch what is the next coming for you. आपको वज्रासन में बैठकर आपके एल्बोज को नीचे रखें, एग्जैक्टली आपके नीज के सामने, ठीक है? और जहां पे आपका मिडिल फिंगर का टिप आता है, वहां पर आपको आपके पाम्स को फिर प्लेस करना और आप ऊपर आ जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू टेक मेजरमेंट फॉर मांजरासन। मैं एक और बार रिपीट करूंगी। वज्रासन में बैठना है, एल्बोज को नीचे रखें, ओके, और जहां पे आपके मिडिल फिंगर का टिप आता है
वहां पर आपको आपके पाम्स रखने हैं और ऊपर आ जाएंगे. सो दिस इज द एग्जैक्ट पोस्चर फॉर मांजरासन. और फिर आप थोड़ा सा आपके को एडजस्ट कर सकते हैं बिकॉज द नीज हैव टू बी एग्जैक्टली बिलो द हिप जॉइंट और आपके रिस्ट जॉइंट आपका शोल्डर जॉइंट के नीचे होना चाहिए. So just check that for yourself. And with Manjarasan, inhale, you arch your back and look up. Exhaling, down. Inhaling, arch your back and look up. Exhaling, look down, touching your chin to the chest. Nicely out. Inhale, up. Exhale, down. Inhale, up. Exhale, down. Last time, inhale, up. Exhale, down. And relax. Release. Sit in Vajrasana. Again, close your eyes. Be with yourself. Be with your breath. And next, we will go for Parvatasana, the mountain pose, a very beautiful asana to strengthen your spine and the spinal nerves. स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है. और अभी भी हमने काफी सारे जो आसन किए, तालासन किया, अधोमुख ऊर्ध्वमुख किया, तो वहां पर सब में हम एक्चुअली कहीं ना कहीं स्पाइन को स्ट्रेंथन कर रहे थे, एक्टिवेट कर रहे थे. सो इन पर्वतासन यू हैव टू सिट इन पद्मासन. Okay, it is expected to sit in so that you get a good fixity at the base. Okay, but if you can't sit in Padmasana, it is perfectly fine. अगर आप नॉर्मल सुखासन में बैठे या फिर अर्धपद्म में बैठे. अर्धपद्मासन जहां पर आप सिर्फ एक पैर ऊपर रखेंगे. So this is अर्धपद्मासन. Okay, so you can choose your comfortable posture. And let's begin. Hands by your side. Palm facing upward. Inhaling. 2, 3. Normal breathing के साथ यहाँ पे रुकेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Turn your palms. Exhaling down. अभी हम इसकी वेरिएशन करेंगे और एक बार ये फर्स्ट राउंड हम फिर से रिपीट करेंगे टुवर्ड्स द एंड. फिर से आपको हाथ को ज्वाइन कर लेना है ऊपर और अभी इनहेल करते हुए आपको रेंड करना है. एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएं. इनहेल बेंड. एक्सहेल बैक. अभी यहाँ पे पहले इनहेल करें. एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे. इनहेल वापस और एक्सहेल ट्विस्ट. इनहेल वापस आ जाइए. अभी यहाँ पे एक्सहेल कर लें. इनहेल करते हुए आर्च बैक करेंगे, ऊपर देखेंगे. एक्सहेल करते हुए आगे बेंड करेंगे. एंड स्टे हियर. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इनहेल करते हुए ऊपर. एक्सहेल हाथ नीचे. Relax. One more time. We will just do the first one, the normal Parvatasana. Inhaling. फिर से हाथ ऊपर ज्वाइन करेंगे नमस्ते में. नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहाँ पे रुकेंगे.
10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale, relax. All right. Release your Padmasana and stretch front. We will go for Gaumukhasana now. So what you have to do is गौमुखासन के लिए पहले तो पैरों को बाहर ले लें और फिर आप अभी लेफ्ट पैर को इस तरह से आपको फोल्ड करना है जिससे आप आपका लेफ्ट हील राइट हिप के पास लेकर आएंगे और वैसे ही दूसरे पैर को भी फोल्ड करना है, ठीक है? So your both the heels are near the opposite hips and you are forming a triangle here. Both the knees on each other, yeah, and a nice straight spine. Okay, and whichever leg is up, जो पैर ऊपर होगा वो ही हाथ ऊपर से जाएगा और दूसरा हाथ नीचे से, और अपने हाथों को पकड़ना है। अगर आप अपने हाथों को नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, आपको आपके टी शर्ट को, टॉप को पकड़ लीजिए पीछे, ठीक है? लेकिन नेक रहेगा। और यहाँ पे हम रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अब हम चेंज करेंगे। अभी राइट पैर पहले नीचे चला जाएगा और लेफ्ट पैर ऊपर। ओके, एंड अगेन द सेम थिंग, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा एंड अदर हैंड फ्रॉम डाउन एंड यू स्टे हियर। नॉर्मल ब्रीदिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax, release। रिलीज कर लेंगे पैरों और पैर स्ट्रेट कर लें, ठीक है? अब हम जाएंगे जानु शीरासन के लिए। पश्चिमोत्तानासन, लाइक जो हम हाथ स्ट्रेच करके टोस को टच करते हैं, तो कभी कभी होता है कि हम नहीं पहुंच पाते और वो डिफिकल्ट लगता है या हमें स्ट्रेच फील होता है थाइस में, ऐसा लगता है कि छोड़ दें जल्दी से आसन। तो इसके लिए जानु शीरासन थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, जिसमें आप क्या करेंगे, एक पैर को फोल्ड कर लेंगे। आई हैव फोल्डेड माय राइट लेग एंड प्लेस योर फुट नेक्स्ट टचिंग टू योर लेफ्ट थाई, इनर पार्ट ऑफ योर थाई। ओके, यहाँ और अब इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए आगे बेंड करना है। अगर आप आपके हेड को टच कर सकते हो नी को तो आप करें, और अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, तो फिर आपको आपके टो की तरफ देखते रहना है और यहाँ पे रुकेंगे हम। नॉर्मल ब्रीदिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल, ऊपर आ जाएं, एक्सहेल, रिलैक्स। हम और एक बार करेंगे, फिर हम पैर चेंज करेंगे, ठीक है? और एक बार करेंगे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, exhale, go down and stay here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, ऊपर आ जाए, exhale, release. अब चेंज करेंगे। Change your leg. Make sure your toes are always pointing up. It should not fall off. ऐसे. It has to be alert. The leg has to be alert. Okay. Inhale and exhaling down. And stay here. Breathe normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, ऊपर आ जाए, हाथ नीचे। और एक बार रिपीट करेंगे।
Get ready. Inhale up. Exhale down. Normal breathing. Stay here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, come up. Exhale, hands down. Okay. दोनों पैरों को सामने ले लें और हम काउंटर पोज देंगे. तो काउंटर पोज में आपको हाथ पीछे रखना है और हिप्स को लिफ्ट करना है और वापस आ जाएं. ओके. और एक तरीका है काउंटर पोज का जिसमें आप आपके लेग्स को फोल्ड कर लें और लिफ्ट करना है. So you can quickly choose one of them and just give a counter pose and come back and relax. All right. So next we go for is Bhujangasana. So you need to lie down your stomach. Okay. The checkpoint before you begin the asana is पैर को जोड़े रखना है. Your feet should be together. Okay, throughout. Another thing, your palm is beside your chest. Elbows are not falling apart. Elbows body के पास में रहने चाहिए, ना कि दूर. Okay, and आपका forehead ground को touch करेगा. This is the starting position for Bhujangasana. और अभी आते वक्त आप सिर्फ अपनी spine का strength use करेंगे. हाथों पर कोई pressure नहीं देना है. Here we go. Inhaling, come up, 2, 3. Breathe normal and stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhaling down. और एक बार. Sorry. Let's inhaling up, 2, 3. Breathe normal, stay here, 2, 3, 4, 5, 6. Exhaling down. हम एक और बार करेंगे and we will try and stay in the position for 20 counts. Let's do it. Inhale करते हुए feet together. Remember, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Relax in Makrasana. Makrasana is nothing but you have to keep your hands in front and just relax your head on it. Next we will go for is Shalabhasana. So Shalabhasana के लिए हमें हाथों को अपने पैरों के साइड में यहाँ पर ही रखना है और it should palms facing should be downward. You have to place your chin on the ground and now you will inhale here first. Exhale करते हुए एक पैर को ऊपर उठाना है और यहाँ पे रुकेंगे. 5, 4, 3, 1. धीरे से नीचे लेकर आए पैर को और चेंज स्विच करेंगे. इनहेल करें पहले. एक्सहेल करते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं.
यहाँ पे रुकेंगे 5 4 3 1। एक्सेल करते हुए पैर नीचे। और एक बार रिपीट करेंगे जस्ट विथ वन लेग। इनहेल और एक्सेल करते हुए पैर ऊपर साइड। यहाँ पे रुकेंगे 5 4 3 2 1। Slowly bring your leg down and change. Inhale and exhaling, left leg up. रुकेंगे 5 4 3 2 1। Exhale down. Relax for some time. And we will do it now the last with both the legs. Okay, so you inhale and exhaling, lift both the legs up. Here 5 4 3 2 1। Exhaling down. एक और बार रिपीट करेंगे। And we go. Inhaling, lift both the legs up. Stay 5 3 2 1। Exhaling down. Release and relax in Makarasana for a few seconds. And now you can slowly turn onto your one side and sit up. We will be doing a quick relaxation techniques now. We will get into the relaxation postures. So first we will do is Nishpand Bhav and then Shavasana. So Nishpand Bhav is a sitting relaxation technique. So what you have to do is you have to sit against the, okay, leaning against the wall. Remove your any bands or clips are there so that you can relax your head also on. You can just loosen it. So you can just relax your head. Legs will be at a little comfortable distance. आपकी हथेलियों को आपको ऊपर की ओर टर्न करते हुए इस पर रखना है कंफर्टेबली और अपनी आंखों को बंद करना है यहाँ पर. And now just follow my instruction. Once you are there in this posture, in this comfortable posture, just observe your breathing initially. अपनी सांसों पर ध्यान दे पहले. और अब आपको अपना अटेंशन, अपना ध्यान आपके आसपास होने वाले सारे छोटी बड़ी आवाजों पर लाना है. हर एक आवाज को ध्यान दें. Pay attention to all the sounds around you. इन सब आवाजों में से कोई एक ऐसा आवाज होगा जो कांस्टेंट है, जो कंटिन्यूअस है. आपको अपना ध्यान उस एक आवाज पर केंद्रित करना है. You have to focus on that one constant sound. Do not analyze it. Just observe. खाली उसे ध्यान दें. कुछ भी उसके बारे में सोचिए मत. सिर्फ उसे ध्यान दीजिए. And keep relaxing.
आपका माइंड आपको कहीं और किसी और विचारों में ले जाने की कोशिश करेगा, उसे जेंटली उसी साउंड पर केंद्रित करें। And now slowly, do not open your eyes, but just lie down on your mat. Then you can feel your mat with your hand and lie down. Do not open your eyes. शवासन में इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपको आपके बॉडी को एकदम ही ढीला छोड़ देना है और अगले कुछ मिनटों तक आपको ही स्थिर रहना है। You have to remain still and do not move. Be completely relaxed. ये एक वैराग्य भाव वाला आसन है, एक सरेंडरिंग वाला आसन है। कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएं। And just follow my instruction to relax each and every body part. So starting with your toes, relax your toes and your toes are relaxed. Relax your ankles and your thumb. Relaxed. Relax your calf muscles and your calf muscles are relaxed. Relax your knees and your knees are relaxed. Relax your thighs and your thighs are relaxed. Relax your groin and your groin is relaxed. Relax your stomach and your stomach is relaxed. Relax your chest and your chest is relaxed. Relax your shoulders
and your shoulders are relaxed. Relax your arms and your arms are relaxed. Relax your neck and your neck is relaxed. Relax your face and your face is relaxed. Relax your eyes and your arms. Relaxed. Relax head and your head is relaxed. Your whole body is relaxed, completely relaxed. Make gentle movements in your toes and fingers. Start becoming aware of your body. Bring your feet together. पैरों को जोड़ लेंगे, हाथों को बीच में लेकर आएंगे और एक बार हम अच्छे से स्ट्रेच करेंगे सोते हुए ही। हाथों को ऊपर ले ले, हेड के ऊपर, और टोस को बाहर की ओर पॉइंट करेंगे और अच्छे से करें। इसे कहते हैं यष्टिकासन। और वापस आ जाएं। हम राइट साइड की ओर टर्न होकर दृढ़ासन में रहेंगे। और दूसरे हाथ का सपोर्ट लेकर आपको बैठ जाना है। सिट इन सुखासन। Again, when you sit in Sukhasana, make sure that you keep your spine straight. And we will quickly go for 2 pranayams. One is intercostal breathing and another is equal breathing. So intercostal breathing के लिए आपको आपके हाथों को आपके lower part of the rib cage पर रखना है। आपका rib cage जहां पर end होता है वहां पर आपने हाथों को रखना है साइड में। और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप उस मूवमेंट को फील करें। आप देखेंगे कि आपके हाथों को बाहर की ओर पुश भी आप इनहेल करते हैं, नेचुरली पुश होंगे आपके हाथ बाहर की ओर। और यहाँ पर हम इक्वल ब्रीदिंग के साथ करेंगे यही सेम प्राणायाम। जैसे इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग, तो हम जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। हम 3 काउंट के लिए इनहेल करेंगे और 3 काउंट के लिए एक्सहेल करेंगे। तो पहले एक क्विक एक्सहेल। इनहेल 1 2 3, exhale 1 2
3. Inhale, 1, 2, 3. Exhale, 1, 2, 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 3. Try 2 rounds on your own. 2 round अपने आप करने की कोशिश करें. Relax. And lastly, to complete our class, we will do Brahmari along with Yoni Mudra. I will just come closer. So हमें इस तरह से फिंगर्स को अपने फेस पर रखना है, जहाँ पे आप लिटिल फिंगर आपके लोअर लिप के नीचे, इंडेक्स फिंगर सॉरी रिंग फिंगर अपने अपर लिप के ऊपर, मिडिल फिंगर नॉस्ट्रिल के पास, इंडेक्स फिंगर आई लैशेस के ऊपर आंख बंद करने के बाद, और थंब आपके ईयर्स को कवर करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से ये मुद्रा रखनी है अपने फेस पर, और जेंटली, कहीं पे भी प्रेशर नहीं देना है, एकदम लाइटली आप अपने ये फिंगर्स को रख रहे हैं. और अभी एक गहरी सांस लें. Gently bring your hands down, but keep your eyes closed for some time. Observe your breathing for last few seconds. Gently rub your palms. Cup your eyes. Slowly bring your hands down. Open your eyes. Thank you for the practice. You can gently open your eyes and relax. Thank you so much. Over to you, Urmila ji. Thank you, Priyanka ma'am. Thank you very much. It was a very nice, wonderful session. And I hope all the candidates, all the students and all the participants have enjoyed this wonderful session by Priyanka ma'am. Priyanka ma'am, on behalf of Kirti College NCC unit and Gayatri Yoga Sadhana Nyas, I would extend my heartfelt gratitude for conducting this wonderful session. Thank you so much, madam. Thank you. Thank you for this lovely opportunity. It was great association and to conduct this session with all of you. Thank you so Yes. much. Yes, madam. So I will take your leave. Thank you so much. Yes, yes. Thank you, ma'am.
Now over to Jyoti madam. Jyoti madam. Yes, madam. So participants, here's your favorite teacher It's every not so. day. But No, it was really very patient. And मुझे लगता है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी थोड़ा चेंज मिला और yes. शी कंडक्टेड सो वेल. मुझे So, बहुत अच्छा लगा yes. उनका सेशन. Very मुझे बहुत अच्छा लगा. और भी एक बात है जो एक गोमुखासन और एक कोई आसन है वो खाली रेपिटेशन हुआ. बाकी तो शलभासन. बाकी हमने Shalabhasan and Gomukhasan. I had told her, but they रेपिटेशन said हुआ. it's sequence. लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट्स को और एक बार प्रैक्टिस मिला. दे गॉट द प्रैक्टिस. Only thing is that there was between Brahmari that I taught you yesterday and that she has taught you today. Don't get confused. इसमें बिल्कुल भ्रम पैदा मत कीजिए. एक बात ध्यान में रखिए कि there in India there are many schools of yoga. और मैंने जो आपको सिखाया वो हठ योग नाम. पतंजलि योग अलग है, हठ योग अलग है. और उनके हठ योग प्रदीपिका नाम का एक ग्रंथ है. देयर इज अ सेमिनल बुक टाइटल्ड एज हठ योग प्रदीपिका in Sanskrit. So inquisitive minds can definitely go to it and read it. जो चाहते हैं वो बुक पढ़ सकते हैं. उसके काफी ट्रांसलेशन भी मौजूद है. तो मैं जो योग सिखाती हूँ वो हठ योग है. तो उसमें थोड़े से वेरिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है. और सेंटा क्रूज योग इंस्टीट्यूट है, काफी पुराना इंस्टीट्यूट भी है. मैंने भी उनके पास मेरा डिप्लोमा भी किया है. तो दोनों तरीके की भ्रामरी जो है कर सकते हो, जो आप सही समझे और जो आपको ठीक कंफर्टेबली करने को आए. So you can do any one of it. Otherwise there is no need of confusion. Then I got 2 questions in WhatsApp. Those who are not on WhatsApp, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी. Since we are all ladies here, so we have typical ladies, I won't say problems, but we have typical way of our body functions differently than male body. हम पुरुषों के अलावा हमारे पास कुछ भगवान, we are gifted people, भगवान ने हमको कुछ ज्यादा दिया है. हमारे पास एक है चीज, बहुत बढ़िया चीज है, उसका नाम है गर्भाशय. यूट्रस हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं. तो वो यूट्रस के कारण हमको हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है 4 दिन. अगर आपकी उम्र 45 से नीचे है तो आपको हर एक को ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है. उससे रिलेटेड कई डिसऑर्डर्स भी उसके साथ आती है. और इसका अभ्यास when you will do a complete 3 months yoga class, you will be able to tackle with all the problems related to uterus. लेकिन आमतौर पे जिन्हें हर महीने 4 दिन ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उनको उस दरमियान योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. करना है तो कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए. These are the questions that were put in and I have tried to give answers, but here once again I repeat, during the menstrual cycle वो 4 दिन में किसी भी प्रकार के आसन, प्राणायाम और शुद्धि क्रिया हमें करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं. तो फिर 4 दिन में क्या कर सकते हैं. हाँ, 4 दिन में कर सकते हैं हम. इधर हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया नहीं है, हो सकता है कल वो बात कवर हो जाए. गायत्री मंत्र का उच्चारण अगर आप मानते हो, जानते हो तो करना चाहिए. उसके कई लाभ है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और इसके लाभ आप ले सकते. दूसरी बात, आप ओंकार नाद साधना कर सकते हैं. 5 बार का ओंकार, बीच में 1 मिनट का ध्यान, फिर 2 बार ओंकार. नंबर 3, अभी आपने मैडम ने जो बैठे शवासन दिखाया निष्पंद भाव, वो कर सकते हैं.
सोकर शवासन दिखाया, वो कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे शवासन और उसका और एक नाम है निद्रा। पीपल यूज इट इंटरचेंजेबली, योग निद्रा कहो या शवासन कहो, वो कर सकते हैं। तो 4 दिन में थोड़ा ध्यान कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, ओंकार नाद साधना कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करना है, आकर्षण क्रिया कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ के श्वास प्रश्वास पर लक्ष्य केंद्रित कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें, ये भी बहुत हो गया, इतनी सारी चीजें वो 4 दिन में करनी है। लेकिन किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज 4 दिन में हम लोग एडवाइज नहीं करते। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उससे बहुत बड़े हमें प्रॉब्लम हो सकेगी। नॉट सरी, देयर आर पीपल दोज हु आर परफॉर्मिंग। अभी जैसे मेडिकल मॉडर्न साइंस कहता है कि उन 4 दिनों में भी लड़कियों को खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, फिर टेम्पॉन यूज, स्विमिंग करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिससे होता है उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, उन लोग कर सकते। लेकिन जरूरी नहीं है कि आज तकलीफ नहीं हो रही है इसका मतलब भविष्य में नहीं होगी। People have faced problems in future, so he needs relaxation. So during those 4 days, relax and only do relaxation techniques like Gayatri Mantra, Pranakarshana Kriya, Onkar Dana, Nishpanda Bhav, Yoga Nidra, Shavasana, meditation. That's all. उतना ही कीजिए। दूसरा एक प्रश्न था, सीजरियन डिलीवरी हो गई है, उन लोग क्या कर सकते हैं? मैं इस बारे में एक योग शिक्षिका नाते भी बोल सकती हूँ, और मेरी खुद का मेरा सीजरियन था, मैं बोल सकती हूँ। आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव दैट एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सो टू से। सीजरियन के बाद, if you ask me, I had started with it after 6 months, but it is advisable that you start after 8 to 10 months. 8 से 10 महीने बाद होने के बाद 8 से 10 महीने रुक जाइए और उसके बाद जाके एक्सरसाइजेस शुरू कीजिए। तब तक थोड़े ये ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग थोड़े वो कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड कि स्टिचेस आए हैं, किस प्रकार का तुम्हारा ऑपरेशन किया गया है, किस डॉक्टर ने, किस हॉस्पिटल में, पोस्ट डिलीवरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं क्या, बहुत मैटर करता है। एवरीबडी इज सेपरेट एंटिटी, एवरी बॉडी इज डिफरेंट। एक बॉडी को जो चलता है वो दूसरे बॉडी को नहीं चलेगा, इसलिए हम समान नियम नहीं बना सकते। फिर भी बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है जिसको ब्रेस्ट है, यूट्रस है, टू हैंड्स, टू लेग्स, आईज एक्सेट्रा, कुछ कॉमनलिटीज है। There are certain things which are very common, लेकिन फिर भी functioning of the body is different. इसलिए एडवाइजेबल यही है, 6 से 8 या 8 से 10 महीने होने दीजिए। When you find everything is normal, सब कुछ नॉर्मल जा रहा है, शुरुआत कीजिए। और जब आप शुरुआत करेंगे, do it under supervision. टीवी में देख के, यूट्यूब देख के, क्योंकि यूट्यूब में डोंट्स नहीं बताते हैं किसको करना है। फॉरवर्ड बेंडिंग करना है तो किसको करना है और किसको नहीं करना है। हर एक की उम्र होती है। जैसे ये लड़की आज अपना हमने प्रियंका पात्रा देखी, उसकी उम्र की तो मेरी बेटी होगी, तो उसकी उम्र और मेरी उम्र अलग है। और मैंने, अगर मेरी उम्र आज 50 साल की और मैंने लाइफ में 50 सालों में मैंने कभी कुछ नहीं किया है, और आज मैं पहली बार YouTube देख के करने जा रही हूँ, और मैंने शीर्षासन लगाया और किसी को बोला पकड़ मेरे पैर लेके जाओ ऊपर, नो, डोंट डू दिस extraordinary feat. If you get indulge into, you're likely to face problem. गर्दन की हड्डी टूटने वाली है, इसलिए शीर्षासन के ने जो पर्याय बताया है सर्वांगासन, उसकी भी तो शुरुआत होनी चाहिए। एंड डोंट गेट डिप्रेस, अरे प्रियंका मैडम इतना अच्छा करती है और हमारा तो एक पैर मेरा नहीं उठा, मेरा ये नहीं उठा। प्रियंका मैडम की उम्र, प्रियंका मैडम का रियाज की साधना हर एक की अलग है। डोंट गेट डिप्रेस,
इट इज अल्टीमेटली अ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। आएगा, तुमको भी आएगा, कैसे करो, विश्वास रखो, और एक दिन ज्योति मैडम की तरह, प्रियंका मैडम की तरह तुमको भी आएगा। एंड व्हेन यू विल बी एबल टू डू इट, यू विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ इट। अल्टीमेटली हमें संसारियों के लिए योग का क्या महत्व है, ये किसी को दिखाना नहीं है, हमको सिर्फ फिट रहना है, शांत रहना है, बॉडी और माइंड को जोड़ के रखना है, बस इतना ही तो मकसद है। Yeah, that's all from my side, Urmila madam. I went on It's and on. okay. Are liking to, listen to you. एक बात है, I would like to share one thing, Jyoti madam. When I had been Yes. for my NCC training, it was a 3 months training. I mean, how उस training में it was a very tough training. सुबह से लेके रात तक, like we are into physical and mental activity. But वहाँ पर during menses, during our menstrual cycle, 1 minute का भी आराम नहीं देते थे. So it was really very bad that time. तो किसी को ज्यादा तकलीफ है, किसी को कम तकलीफ है, but they used to never allow us to rest. Maybe the thing that they are making people who join army, I mean ladies, now ladies are in all the field, so maybe they are trying to make ladies strong, those who are in army, because when it is front line, they cannot look at this aspect. और one more thing is that कि जैसे पुराने जमाने में, like when मेरी मम्मी थी, whenever you have periods or something, हम बोलते थे ना कि बाहर बैठना है या अलग से बैठना है. That is the reason that our body needs rest during that period. पुराने लोग जो बोलते थे ना कि when you have periods, so आपको कुछ नहीं करना है, कुछ करने नहीं देते थे, खाना दे या घर के कुछ काम काजों में हाथ नहीं बटाने देते थे. So as you say, Jyoti madam, that must be the reason of keeping your body at rest during that time. Yes, लेकिन उसमें कालांतर से उसमें कुछ बुरी चीजें आ गई, छूना नहीं है, इधर नहीं जाना है, मन जाना है, ये गंदा है, अछूत है, अनटचेबल है. नो, ये इसमें बाद में आ गई होगी, लेकिन बॉडी नीड्स रेस्ट. और जैसे आपने आर्मी का वगैरह एग्जांपल दिया है, यस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमन. स्त्री और पुरुष समान है, फिर भी स्त्री की बॉडी अलग है, उसकी कुछ अलग डिमांड्स है. I know, but Yes. I mean now. लेकिन फिर भी एक ऐसे नाजुक तौर से, बड़ी नाजुक से पली परी ऐसा बन के नहीं रहना है. अरे मेरे 4 दिन हैं, मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरे तो 4 दिन हैं, जरूरी नहीं है. और इससे बाहर निकल आना है कि 4 दिन में है, फिर भी मुझे चुपचाप किसी कोने में नहीं. आमतौर पे जितनी चीजें हैं वो करनी है, लेकिन उसके अलावा, other than this, you don't have to make your body hard. No need. Rigorous activity, Yes. whatever is required for your daily activities, you can obviously do, but not indulge into the rigorous, right? Okay, Yes, that और was there very nice. are certain asanas, जैसे मैंने बताया है कि रेगुलरली 4-5 आसन आप करते रहोगे तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्टमक एक ड्यूरिंग मेंसेस, ये प्रॉब्लम से बाहर निकल आ सकते हैं. मैंने कितनी औरतें मैंने देखी, और नहीं मेरा तो ये ऐसा ही है, अरे ऐसा नहीं है, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. मेरा तो ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं है. देयर आर सर्टेन चीजें, थिंग दैट यू कैन चेंज. अभी जो हाइट है वो मैं नहीं बदल सकती, मेरी स्किन का कलर मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मेरे जो मुझ में जो डिसऑर्डर है उसमें योगा में सोल्यूशन है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं. बस उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वर्क फॉर इट. बस उसको लेके नहीं बैठना है, क्या करूं मैं बेचारी. नो, कम आउट ऑफ इट. देयर इज सोल्यूशन. योगा हैज सोल्यूशन विदाउट मेडिसिन. या दैट्स इट. Yes, and one more thing, matlab I am telling all the cadets, students, young students who are there are ladies also. ये जो हमारा वर्कशॉप हो रहा है, मतलब टुडे इज our second last day.
that indulge, we have to अपने body को इसके लिए तैयार करना है. That is for योगाभ्यास, मतलब योगासना करना है हमें, प्राणायाम. This should be a part of our routine work, because now you cadets and you students, you are continuously on before the screen, and you are in, and your mind is continuously occupied, continuously. मतलब ऐसी कोई भी बात नहीं हमारे, मतलब ऐसे भी होता था कि हम पढ़ाई करते थे, हम बाहर जा खेलते थे, खेलना कूदना ये सब था. बट अभी बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल्स एंड सोशल मीडिया, एंड यू आर टू ऑक्यूपाइड. और ये सोशल मतलब एक के बाद एक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर. So you all are so busy. So something has to be there, some activity. So with yoga, you are giving time for yourself. See, nothing is important than your own self. खुद के, खुद से ज्यादा कुछ कोई भी चीज आज के तारीख में important नहीं. You have to take care of your mind, your body, your soul, and then other things. So if you are following this practices, ये एक वीक में ये सब सीखा है, वो आप कायम रखिए. Make it a practice. That is my request to all the new, I mean all the students, young cadets. Okay. Or today there's one one more thing. I got yes. one chat box. So what I want to tell you, yoga class is there even tomorrow, and tomorrow we have invited expert. One is Ayurvedic doctor, MS, that is post graduation है उनका, वो प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाते भी है और खुद MD डॉक्टर है, तो वो है. और दूसरे योगा गुरु है जो मेरे गुरु है, जो 25 सालों से इस क्षेत्र में है. कल भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और कल मुझे लगता है आपको प्रश्न नहीं पूछने पड़ेंगे, क्योंकि कितने सारे आप सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे. स्पेशली कोविड के बारे में तो बहुत जवाब मिल जाएंगे. इसलिए कल का सेशन हमारा पैनल डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें काफी Jyoti madam, I was just about to cover the tomorrow's entire program, how we are going to celebrate. Okay, you can continue. या नो. सो मेरा कहना है कि आज जो प्रश्न है, अगर उसके Madam. उत्तर कल भी नहीं मिलेंगे तो आप Urmila madam and Jyoti madam, if you want, you can turn on your video. Your videos are off. Both No, of your it's- videos are off. नो Yeah. इट्स Hey, it's okay. Yeah. प्रश्न के उत्तर कल मिलेंगे, और अगर नहीं मिला तो भी एंड ऑफ द सेशन आप फिर से प्रश्न कल पूछ सकते हो. हमने कल थोड़ा समय प्रश्नोत्तर के लिए भी रखा है, पूछ सकते हो कल के सेशन में भी. यस, कल का पूरा सेशन कैसा है आपको? Tomorrow is International Yoga. और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर हम योगा डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, और एक अलग तरीके से. बाकी सब एक दिन में आप जो पार्टिसिपेंट्स है, आपकी वजह से हमें ये योगा, इंटरनेशनल योगा डे एक पूरे सप्ताह तक हमने उसे मनाया है. तो कल उसका कल्मिनेशन, वी ऑल विल गैदर, एंड पहले आधा घंटा वी विल हैव योगा प्रैक्टिसेस जो हम रोज प्रैक्टिसेस करते हैं, और उसके पश्चात एक चर्चा सत्र होगा, पैनल डिस्कशन होगा. उस पैनल डिस्कशन में 2 एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास. एक है श्री विनायक जी देसाई, और डॉक्टर संकल्प. और विनायक जी योगा के तज्ञ है, अंबिका योगा आश्रम के वो बहुत वरिष्ठ मेंबर है. हमारी मैडम डॉक्टर ज्योति इनके गुरुजी भी है, और डॉक्टर संकल्प ही इज MS आयुर्वेदा, और उनका आयुर्वेदा के ऊपर बहुत गहरा ज्ञान है. एंड टुमारो देयर विल बी अ पैनल डिस्कशन इन विच दैट पैनल डिस्कशन विल बी मॉडरेटेड बाय डॉक्टर ज्योति, और डॉक्टर ज्योति उनको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और बहुत सारे हमारे जवाब है, I mean सवाल है बहुत. Nowadays due to this I mean in this COVID time, lot of controversy and people are having lot of misunderstanding, misconceptions going on, and media के ऊपर उसका बहुत बोलबाला, and लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या करना है. So tomorrow lot of questions
will be answered and आपके बहुत सारे सवालों के जवाब अपने आप उस पैनल डिस्कशन में आपको मिलेंगे। तो कल की लिंक जो रहेगी, प्रोग्राम की लिंक, कल का ज्वाइनिंग लिंक जो है, टुमारोज ज्वाइनिंग लिंक विल बी डिफरेंट। We all will join through YouTube link tomorrow, okay? And I will send कल के जो प्रोग्राम का ब्रोशर है, वो ब्रोशर और उसकी जानकारी मैं इस ग्रुप में दे दूंगी आपको। और ये आई मीन कल का सेशन आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और अपने स्कूल के कॉलेजेस के टीचर्स, आप सबको दे सकते हैं। एंड एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन टुमारोज प्रोग्राम, ओके? एक अलग तरीके से हम योग भी मनाएंगे। और दूसरी बात है, आज इस सेशन के बाद में मैं यहाँ पर एक फीडबैक फॉर्म की लिंक भेजूँ। ये 7 दिन, आई मीन ये 1 वीक, हाउ डिड यू फील, हाउ वाज द कोर्स, उसका एक फीडबैक आपको देना है। तो जरूर विदाउट you kindly give the feedback of this entire 1 week हाँ, workshop. और आपका Okay? फीडबैक है वो हमारे लिए मूल्यवान है, क्योंकि हम उसके सहारे अगले कोर्स में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो या आप अच्छा छोड़ दो, आपको लग रहा है कि ये भी होना चाहिए, इस कदर से होना चाहिए, ये करने में हमको ये दिक्कतें आई वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ अगर है आपके कुछ ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रोग्राम कैसे रहा। और हमको एक प्रकार का ये आपके कमेंट्स जो है वो एक प्रकार के मोटिवेशन देते हैं कि हाँ हम लोग अच्छा कर रहे हैं, Yes. करना चाहिए। राइट, हमारा उत्साह और बढ़ाएंगे। और इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम करने में हम कामयाब हो जाए, तो जरूर आप फीडबैक देना। एंड काइंडली, आई मीन प्लीज ज्वाइन टुमारो सेशन। व्हेन यू गिव द फीडबैक, आप जब फीडबैक भरेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको मिलेगा। एंड फर्स्ट डे जब फीडबैक आप भरते हैं तो फर्स्ट डे 100 सर्टिफिकेट्स आर जनरेटेड। तो अगर किसी को सर्टिफिकेट पहले दिन, तो आप डरना मत, यू विल गेट द सर्टिफिकेट after the next day, I mean after 24 hours your certificate generated. Okay, so that's it. And really we have enjoyed this yoga session with you. And Jyoti madam, really I am on behalf of NCC girls unit, I mean so many NCC girls are commenting that the session was, और ये एक आदत हमें इनकलकेट करनी चाहिए। एंड you have really helped me to instill these qualities in my cats. Thank you so much. और मैं भी सबका शुक्रगुजार करना चाहूंगी। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल, क्योंकि सिखाना तो मैं कितने लोगों को चाहती हूँ, लेकिन सीखने वाले नहीं मिलते हैं। तो सब लोग रोज सुबह 7 बजे, मतलब 7 बजे वेटिंग रूम में मैं देखती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और सब लोग अच्छे से ऑन किया तो मैंने देखा, अरे वाह, सब लोग कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी समय, किसी भी कोने में जब भी कोई योग करता है तो मुझे खुशी मिलती है। और आप मेरे खुशी का कारण हो, इसलिए सबको बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। मिलते हैं कल सुबह। कल का प्रोग्राम हमारा 8 बजे शुरू होने वाला है, नॉट 7 o'clock, 8 o'clock टुमारोज प्रोग्राम। काइंडली शांति पाठ लेके फिर स्प्रेड, करेंगे उर्मिला मैडम, हाँ आप हाँ, पूरा यस कीजिए यस। आपका। और तो काइंडली सेंड द ब्रोशर अक्रॉस टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। और इस अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। यस ज्योति मैडम, ओवर टू यू। या शांति पाठ करेंगे और वर्ग की समाप्ति करते हैं। किसी भी सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में आ जाइए। दोनों हाथों को छाती के मध्य स्थान पर जोड़ दीजिए, आंखें बंद। ओम सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति। रब यू बोथ द पाम्स, हाथों का घर्षण कीजिए, चेहरे पर से आप गर्दन पे से हाथ घुमाइए। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you. You can leave everybody.